So if you remember our last lecture, that is on last Friday, I think, we have completed the first chapter, that is crystal structure. Am I correct? Yes, sir. And on the next day, that is on Saturday, I have WhatsApp in our group about the MCQs and numerical problems. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Have you seen these MCQs and numerical problems? Yes, sir. Yes, sir. So now we are going to start the second chapter of this particular paper number 12. Am I correct? 12वां पेपर चल रहा अपना? Yes, sir. And for this paper number 12, second chapter is bonding and band theory of solids. That means, as you know, that our chapter, can you see my photograph? Yes, sir. If you see our last chapter, that was on the crystal structure. ये पूरा के पूरा पेपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता, सॉलिड स्टेट के बारे में इतना तो आप जानते हैं, करेक्ट? Yes, sir. यानी कि ये हमारा 12वां पेपर प्योरली डेडिकेटेड टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जैसे कि मैथ्स के 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैस के बारे में हमने देख लिया फर्स्ट ईयर में, लिक्विड के बारे में भी देख लिया। अब हमारे को सेकंड ईयर में इस पेपर में जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है वो पूरा के पूरा हिस्सा कौन सा है, मादा का या मैटर का? सॉलिड। और सॉलिड की किस्मों में एक किस्म थी क्रिस्टल, जो हमने गुज़िश्ता चैप्टर में देखी। Am I correct? Yes, sir. Now continuing the same study of the solid, some more properties related to the solid structure, etc., that we know. In case of solid, there are the atoms. Am I correct? Yes, sir. किसका बना हुआ है? हर चीज कायनात की छोटे छोटे एटम से बनी हुई है, तो तुम हम सब जानते हैं। Am I correct? Yes, sir. Solid is also made up of large number of atoms. Yes. Now these atoms in the solid, they are arranged in a peculiar and periodic manner in case of crystal. Am I correct? Yes, sir. हर सॉलिड में वो peculiar और periodic manner में रहेंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि हर सॉलिड क्रिस्टल है क्या? No, sir. No. No, So sir. that means these atoms, which are actually the constituents of the solid, they are bound together with the help of a particular force. यानी कि एक कुव्वत रहती है, एक फोर्स रहती है, जो एटम को एक साथ होल्ड करके रखती, किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। Am I correct? That Yes, sir. atoms are bound together. Atoms Yes, sir. bound together in a solid with the help of a bonding. And there are the different types of bonding are there. Am I correct? There are the different types Yes. of bonding. And that bonding, we have to see. Am I correct? The bonding or band theory Yes. of solids का क्या मतलब? कि in case of solid, the atoms are bound together with the help of a force or with the help of a bond. And that different types of bond, उनकी study, कौन कौन से bond है, कब कौन सा bond काम करता, कौन सा bond strong है, कौन सा bond weak है. This study is nothing but it is come under the category of bonding. समझ में आ गया क्या आपके? केमिस्ट्री में भी पढ़े आपने इसका Yes, थोड़ा सा हिस्सा। Similarly, band theory of solids, that means in case of solid,
how the atoms are bound together and which type of energy is associated with the different atoms of the solid. यानी कि सॉलिड जिस एटम्स का बना हुआ रहता उनका एनर्जी का क्या मामला है, अलग अलग एनर्जी लेवल है, पढ़ के आए ना हम इससे पहले, आता क्या याद आपको? Yes, sir. ऐसा बताया था मैंने आपको कि अलग एटम जो है तो अलग अलग ऑर्बिट में फिरते रहते है कि नहीं, हर एटम की जो है हर इलेक्ट्रॉन की जो है तो एक सेल रहता, वो सेल के अंदर उसकी एनर्जी पक्की रहती, वो सेल को कभी सेल बोलते, कभी जो है तो ऑर्बिट बोलते या एनर्जी लेवल बोलते, करेक्ट? तो ये जो बॉन्डिंग और बैंड थ्योरी की जो स्टडी है सॉलिड की, दैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी और अंडर दिस सेकंड चैप्टर। तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? बॉन्ड और बैंड थ्योरी। कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर पढ़ने हैं? द आर्टिकल्स व्हिच आर अलोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज बॉन्ड, बैंड एंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। इंट्रोडक्शन, जो कि थोड़ा सा दे दिया मैंने आपको। कंसेप्ट ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस, समझ में आ रही बात गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. कोहेसिव एनर्जी, सुने हुए वर्ड है सब आपके ये, कोहेसिव, कोहेशन, एडिशन, हुआ क्या अपना? Yes, sir. Then types of bonding, प्राइमरी बॉन्ड, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड्स, वंडरवाल बॉन्ड्स एंड हेटेरोजन बॉन्ड, these are the bonding। ये बॉन्डिंग समझती ना, बंदिश, बॉन्डिंग बोले तो बंदिश, जिसकी वजह से वो एटम सॉलिड के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते, Attached. अटैच रहते, जुड़े हुए रहते, बॉन्ड रहते, am I correct? So different types of bonding we have to study in this particular chapter. After having the knowledge of interatomic force, cohesive energy and different bondings, one model is associated with this different bonding with the solid, and that is called as the Cronin-Penning model. Cronin-Penning model. Then we have to see about the energy versus wave vector relationship, यानी कि ब्रोलियन जोन, ये जो आइटम्स रहते हैं इनके अलग अलग एनर्जी लेवल रहते हैं, सबका जोन अलग अलग बनता। ये थोड़ा सा सॉलिड के अंदर की बात चढ़ी, यानी कि अपने को सॉलिड को एक पर्टिकुलर स्टडी करने बाद उसके अंदर क्या चलता है, ऐसा अगर मैं निकाल के आपको बताऊं कि देखो भाई ये एक सॉलिड है, अरे सॉलिड के अंदर तुम अलग अलग बॉन्ड और बैंड और कहाँ जंपिंग बता सकते क्या? नहीं, इसकी एक अलग स्टडी होती है। वो स्टडी के अंदर जो है तो ये कैसे रिलेशंस है, कौन कौन से एनर्जी लेवल बन रहे, क्या रिलेशन है इनके दरमियान, ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। समझ में आ गया कि आपकी इंट्रोडक्शन की क्या बात चल रही? तो इंट्रोडक्शन, Yes, sir. बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी किससे रिलेटेड है, क्या का चल रहा डिस्कशन अपना? ये पेपर किसके ऊपर डिपेंड करता? Solid. Crystal. क्रिस्टल तो पहला चैप्टर था, पूरा पेपर पहला चैप्टर क्रिस्टल पे था, लेकिन पूरा ये पेपर किसके ऊपर है? सॉलिड स्टेट, सॉलिड बॉडी, Solid. सॉलिड के ऊपर है। क्रिस्टल तो एक पार्ट था उसका। सॉलिड के दो किस्में बोले थे ना हमने, एक क्रिस्टल और एक अमारफस। Yes, sir. आता क्या? पहले चैप्टर में बताया सॉलिड की कितनी किस्में हैं। तो क्रिस्टल तो Yes, sir. देख लिए, लेकिन अब तो जनरल सबका क्रिस्टल, अमारफस, हाइग्रोस्कोपिक सबके बारे में अब अपन बात करेंगे सॉलिड की एज ए उमूमन, ठोस जिस्म, समझता ना? तो ये ठोस जिस्म में हमको पढ़ना है बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी किसके ताल्लुक से बता रहे हैं आपको कि बैंड थ्योरी इन द सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड द थियोरेटिकल मॉडलिंग डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सॉलिड मटेरियल। बैंड थ्योरी किसके ताल्लुक से है? पहले तो किसके अंदर रहेंगी? ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में रहेंगी, बराबर है। और ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या बताएगी? इट विल गिव द थियोरेटिकल मॉडलिंग। प्रैक्टिकल कुछ ऐसा देख रहे नहीं, हम कुछ कर रहे नहीं एक्सपेरिमेंट, ये सब थ्योरी सॉलिड के अंदर की थ्योरी चल रही। तो क्या देंगी ये बैंड थ्योरी आपको? काय के बारे में डिस्कस करेगी, काय की मालूमात देगी? दिस बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड गिव्स अस द थियोरेटिकल मॉडलिंग and the states of electron in the solid material। ये जो सॉलिड मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन रहते ना, इलेक्ट्रॉन रहते हैं सॉलिड में, सॉलिड में कौन रहता? एटम रहता। एटम किसका बना हुआ है? दो हिस्सों का। कौन कौन से दो? Electron, proton. मैं पूछ रहा हूँ Means एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
आप ये मानते हैं क्या दुनिया की कायनात की हर चीज छोटे छोटे एटम से बनी होती? Yes, sir. हर कोई भी एलिमेंट एटम का बना हुआ है, मानते हैं आप? Yes, sir. एटम किसके? एटम दो हिस्सों पर तकसीम है, एक है सेंट्रल न्यूक्लियस और दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. हुआ क्या अपना न्यूक्लियर फिजिक्स में बताया? Yes. हाँ, Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो सॉलिड में भी रहेंगे कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन के अलग अलग स्टेट, एनर्जी स्टेट खास तौर पे उनका भी डिस्कशन होता, उनका भी, उनके बारे में भी मालूमात देती कौन? Bond theory. यस, बॉन्ड Band. थ्योरी। ठीक है, दैट मींस द बॉन्ड थ्योरी of solid can have the values of energy only within the certain specific ranges। यानी कि जो सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मखसूस एनर्जी की कीमत का भी ये तस्करा करती है। उसी तरह बॉन्ड थ्योरी और काय की इंफॉर्मेशन देगी इन एडिशन, सेम थिंग अगर उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके हम बोले तो द बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड आल्सो एक्सप्लेन्स अस द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड। ये सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता, यानी कि उसकी एनर्जी कैसी रहती, किस पे रिलेटेड रहती, कौन से पार्टिकल की क्या एनर्जी रहेंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सॉलिड के अंदर कौन से थ्योरी के अंदर, कौन से शाख के अंदर पढ़ा जाएगा, कौन सी थ्योरी इसको वाज़ेह तौर पर बयान करेगी? समझ में आ रही बात? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. theory is a direct contrast to the behavior of electron in free space। यानी कि सादे उसमें फ्री स्पेस में का जो इलेक्ट्रॉन रहता, आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन दो किस्म के, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसा इसकी मिसाल आपको दे रहे हम, मिसाल के तौर पर ये देखिए, धागे से बनकर एक पत्थर को ऐसा फिराए तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? उसकी मोशन जो है तो आपके वायर के ऊपर डिपेंड करती, और उसके बरखिलाफ अगर खाली अगर कोई पार्टिकल अगर खाली गोल घूम रहा तो वो कौन सा हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन समझता क्या आपको? Yes, sir. ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में सॉलिड के अंदर बंधा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन कौन सा कहलाया? जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स का, उसके जुज का, उसके अज्जा का एक हिस्सा है, बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, बॉन्ड के अंदर जुड़ा हुआ है, सॉलिड का हिस्सा है, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन करेगा? Bond electron. बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और कई फ्री इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे जिसको जोड़ी नहीं रहेंगी, वो खुला रहेगा, है क्या नहीं? तो ये जो सॉलिड स्टेट थ्योरी है ये जो है तो डायरेक्ट बिहेवियर बताएंगी कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कैसा रहता और फ्री इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है। यानी कि दिस बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड डायरेक्ट शो अस और एक्सप्लेन अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज बाउंडेड। बिहेवियर बोले तो क्या? उसका चल चलाओ बोले तो क्या? उसके कैरेक्टर की बात कर रहे क्या हम? हाँ, कैरेक्टर मतलब कौन सा कैरेक्टर? एनर्जी का कैरेक्टर। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर अखलाक तो नहीं रहेंगे, क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर? इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बोले तो क्या? यानी कि उसकी एनर्जी। समझ रहे हैं आप बात को? Yes, sir. That means the electron, free electron behavior and specified electron behavior, it can be given with the help of these bond theory of solid। That means the ranges of allowed energies of electron in solid are given, and that यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के क्या लेवल रहते, किस रेंज तक जो है तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सॉलिड के अंदर, वो भी इसके अंदर बताए जाएंगे। और उसको क्या नाम से पुकारते हैं अपन? अलाउड बैंड। बैंड बोले तो पट्टे होते हैं, पट्टे, एक ग्रुप, ये एक बैंड, ये एक बैंड, ये एक बैंड, ये एक पट्टा, ये एक पट्टा, एक पट्टा, ये ग्रुप, ये 10-5 इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप, 10-5 इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप, 10-5 इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप। तो इसको अपन क्या नाम से पुकारेंगे? अपन अलाउड बैंड्स, द रेंजेस अलाउड एनर्जी। अब ये बैंड, ये पट्टे, ये तकसीम किसकी बुनियाद पे हुई? इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टी को बना के, बुनियाद बनाकर? Energy. यस। तो अलग अलग एनर्जी, अलग अलग वैल्यूज के एनर्जी की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन की तकसीम होगी। किसके अंदर? किसकी बात चल रही है अपनी? Solid. सॉलिड की। और ये जो अलग अलग रेंजेस के जो बैंड्स हैं या जो पट्टे हैं, जो ग्रुप है, जो तकसीम है,
इट इज कॉल्ड एज अलाउड बैंड्स इन सॉलिड। कौन एक्सप्लेन कर रहा है, किसके जुमरे में आ रही सारी बातें? बैंड थ्योरी। Band theory. चलो आगे। यस सर। Certain Yes, sir. of energy between two bands are called the bands, forbidden bands। देखिए अब अलग अलग एनर्जीज के बैंड रहेंगे, समझ में आ गई अपने को बात। पहला बैंड E1 एनर्जी का, दूसरा अलग। अब इन्हें क्या बोला, सर्टेन रेंजेस ऑफ एनर्जीज बिटवीन द टू सच अलाउड बैंड्स आर कॉल्ड एज द फॉरबिडन। फॉरबिडन के बाद छुटकारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विद इन द सॉलिड में नॉट पोजेस दीज एनर्जीज। मतलब क्या, मिसाल के तौर पर एक सॉलिड है, एक सॉलिड के अंदर फर्ज कीजिए कि 50 इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रही की बात आपको? 50 इलेक्ट्रॉन एक 10 जो है तो बैंड्स में तकसीम हो गए, 10 खानों में। खाने बोलिए आप बैंड को समझ, थोड़ा सा मोटा मोटा समझने के वास्ते। दैट मींस ऑल दिस 50 इलेक्ट्रॉन्स दे आर डिवाइडेड इनटू सपोज 10 बैंड्स और 10 ग्रुप्स। समझ में आ गई बात? लेकिन अब ये 10 ग्रुप कौन से बैंड, कौन से एनर्जी के रहेंगे? अलाउड बैंड के रहेंगे, बराबर है क्या? लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन में से हो सकता है कि 45-48 इलेक्ट्रॉन जो है तो अलाउड बैंड में है, और बकिया 5 इलेक्ट्रॉन वो बैंड में है जो इसके अंदर नहीं है, अलाउड बैंड का हिस्सा नहीं है। वो बैंड जो कि अलाउड बैंड नहीं है, बल्कि गैप है बैंडों के दरमियान। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 नहीं है, बल्कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद डायरेक्ट 12 है। तो वो बीच में का जो गैप है ना, आप देखेंगे अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, लेकिन आप समझेंगे आगे सर के। बैंड को अगर मैं इस तरह से आपके सामने यहाँ उतारू बैंड, तो आप समझ सकेंगे। मिसाल तौर पर ये एक बैंड, ये एक बैंड, ये एक बैंड, ये एक बैंड, तो ये सीरियस से हो गया। लेकिन ये जो बड़ा जो गैप आएगा बीच में का, इट इज कॉल्ड, यानी कि छलांग लगा के यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद, यानी एक के बाद दिखरे गए, तो वो कौन सा बॉन्ड हो गया? अलाउड बैंड। Out band. जरा गैप दे के रहा, या उस अलाउड बैंड का हिस्सा नहीं रहा, या लंबी छलांग रही, तो वो कौन सा बैंड कहलाएगा? फॉरबिडन बैंड। समझ में आ रही बात तनाजा, अल्फिया? Yes, sir. ऑल ऑफ यू। चलूं आगे? यस सर। Yes, sir. चलिए, so that means this is called as forbidden band। that means forbidden band में तो कौन सा, इलेक्ट्रॉन within the solid may not possess these energies। यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी एनर्जी सॉलिड के दिगर इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के साथ मैच नहीं खाएगी। जो बोला ना मैंने गैप आएगा, तो ये एनर्जी का गैप है बीच में। द बैंड थ्योरी अकाउंट्स फॉर मेनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। मतलब बैंड थ्योरी ही बताएगी आपको कि आपका जो सॉलिड है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बोले तो उन्हें कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, चार्ज देता तो कितना देता, ये प्रॉपर्टी कौन डिस्कस करेगा? बैंड की बुनियाद पर बताएंगे आपको, यानी कि बैंड थ्योरी बताएंगे आपको। ये जो बैंड बनते हैं ना उसके अंदर, मैंने बताया ना भी आपको, ये अलग अलग जो बैंड बन रहे ना, ये, और ये बैंड किसके है जी, किसकी बुनियाद पे बैंड बने? ये खाने, ये तरतीब, एनर्जी के। तो ये जो अलग अलग जो बैंड बने, ये यानी कि इनकी, ये जो बैंड बने, ये फर्स्ट टाइम बताइए थ्योरी ने उसाते उसको बैंड थ्योरी बोले। तो बोलने का मतलब यहाँ पर कि ये जो बैंड बने इलेक्ट्रॉन्स के सॉलिड के अंदर, यही बैंड थ्योरी आपको बताएगी कि वो सॉलिड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, कि सेमी कंडक्टर है, कि कंडक्ट, समझते, सेमी मोसिल, गैर मोसिल, समझते ना आपको? यस। उर्दू का नहीं भी समझाएंगे तो कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती, इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मालूम है ना तहरीम? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन डिसाइड करेगा उसकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज? कौन आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा, या कौन करता है? बैंड थ्योरी। बैंड, यानी कि बैंड थ्योरी। ठीक है, समझ में आ गई बात? पूरे चैप्टर का लबो लहजा समझ में आ रहा आपको, क्या क्या के बारे में बात कर रहे हैं हम? तो यस सर। हालांकि इंट्रोडक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर का मैं समरी ले रहा हूं यहाँ पर। एंड these solids form the basis of technologically of solid state electronics।
यानी कि ये जो बैंड अलग अलग है क्या, जो बताते कि कौन सा सॉलिड इलेक्ट्रिकली अच्छा है, कौन सा बुरा है, थर्मल प्रॉपर्टी किसकी, थर्मल समझता ना, हरारत उसकी, थर्मल थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आए, तो क्या पढ़े थे थर्मोडायनामिक्स में? टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर, यानी कि कौन सा सॉलिड कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता, कितने टेम्परेचर पे पिघलता, कितने टेम्परेचर पे क्या होता, कहाँ मेल्ट होता, कहाँ स्लो होता, यानी कि थर्मल प्रॉपर्टी भी कौन डिसाइड करता भाई। मिसाल के तौर पर ये दो सॉलिड है, तो ये दो सॉलिड का कौन डिसाइड करेगा? एटम। एटम। एटम में भी कौन, बेशक एटम तो करेंगे, लेकिन एटम जो कहाँ तकसीम हो गए, बॉन्ड, अलग अलग बैंड बैंड्स। तकसीम हो गए ना, यस बॉन्ड या यस बैंड सर। बोलिए उसको, या खाने थोड़ी देर के लिए। तो ये बैंड थ्योरी, ये इनका इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग बैंड में तकसीम हो जाना, और वो बैंड की फिर अपनी कैपेसिटी, कितने बैंड है, कैसे हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या मामला है, क्या एनर्जी है, यही डिसाइड करेंगे कि उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, उनकी थर्मल प्रॉपर्टी कैसी रहेंगी, और यही बताएंगे कि हमारा जो सॉलिड है जिसकी हम बात कर रहे, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के वास्ते कितना यूजफुल है और कितना यूजफुल नहीं है। समझ में आ रही बात? यस सर। चलो आगे। यस सर। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, Yes, sir. all the mechanism which cause the bonding between the atom derive from the electrostatic interaction between the nuclei and electrons। अभी अपन बात कर रहे थे एटम की, बराबर है क्या? किसके अंदर के एटम जी? हमारे सॉलिड। सॉलिड के अंदर। तो अब सॉलिड के अंदर के एटम, अब ये एटम के अंदर कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन है, जो कि सबसे अहम हिस्सा है एटम का, बराबर है ना, क्योंकि एटम कितने हिस्सों पर बना हुआ है? 2. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते, इनको घूमने के वास्ते क्या लगता? एनर्जी। एनर्जी तो लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लगती, यस सर। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता उनको? ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को घूमने के वास्ते आती न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किसकी वजह से आता? कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। और ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को गोल फिरने के वास्ते लगने वाली, इलेक्ट्रॉन को गोल फिरने के वास्ते लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कराती है। मैं करेक्ट? आर यू एग्री विद दिस सेंटेंस? यस सर। पहला लाइन समझ में आ गया? Yes, sir. The differing strength and differing types of the bonds are determined by the particular electronic structure of the atom involved। भाई कौन सा बॉन्ड कैसा रहेगा, कितना स्ट्रांग रहेगा, कितना वीक रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, उसकी टाइप कौन सी है, ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि बॉन्ड में हिस्सेदार कौन है? बॉन्ड बनता किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बराबर है कि? यस सर। आपके यस सर। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या है ये भला? इलेक्ट्रॉन की तकसीम है, किसके अंदर? अलग अलग सेल के अंदर। यस सर। और ये इलेक्ट्रॉन की तादाद, ये इलेक्ट्रॉन की तादाद बॉन्ड के अंदर बताएगी कि बॉन्ड कितना स्ट्रेंथ वाला है और कितना लूज है, कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है कि नहीं? कौन से टाइप का है, वीक है क्या स्ट्रांग है, कोवैलेंट है क्या आयोनिक है, देखेंगे हम आगे, ये इसकी किस्म है। यानी कि कौन डिसाइड करेगा कि बॉन्ड कितना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी टाइप कितनी है? उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की तादाद। समझ में आ गया? चलिए, existence of stable bonding arrangement that the special configuration of positive ion cores and outer electron has less total energy than any other configuration including finite separation of respective atoms। यानी कि आपको ये बता रहे कि सॉलिड के अंदर जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग की वैल्यू, और वो भी बॉन्डिंग स्टेबल है। स्टेबल बॉन्ड समझता ना, कि मजबूत होते हैं, बहुत स्टेबल बॉडी है सब, यानी कि छोटे हल्की सी एनर्जी से टूटेगा नहीं बॉन्ड। वो बॉन्ड तोड़ने के वास्ते अपने को क्या करना पड़ेगा? अच्छी खासी
ताकत लगाना पड़ेगी, ताकत बोलते अपनी ताकत नहीं, यानी कि ऐसी भारी केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगी कि बॉन्ड टूटे। जैसे H2 किसके दरमियान बॉन्ड है जी? H. दो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है। Hydrogen. Yes. लेकिन और ये बॉन्ड जो है तो दो के ऊपर इतना मजबूत रहता कि तीसरा अगर हाइड्रोजन एटम लाके अपने H3 बनाए तो तीसरा हाइड्रोजन एटम इतना मजबूत नहीं रहता वहां पे, लेकिन दो Strong. स्ट्रॉन्ग रहता, तीसरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। तो यही बता रहे कि एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेबल बॉन्डिंग implies that special configuration of positive ion cores and outer electron, यानी कि ये बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है ये बताएंगे कि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यानी कि उनका निगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ये कितना मजबूत है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इधर कितने प्रोटॉन्स है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रहता बोले तो कहां से, न्यूक्लियस तो चार्जलेस रहता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहां से हो गया न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियस बना हुआ किसका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, Proton. करेक्ट? Proton or neutron. और उसमें अंदर न्यूट्रॉन को तो चार्ज नहीं रहता, प्रोटॉन को चार्ज रहता है क्या नहीं? बोलने का मतलब इधर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और ऑर्बिट में फिरने वाले इलेक्ट्रॉन का Negative charge. ये दोनों चार्ज पॉजिटिव कोर और निगेटिव कोर मिलके बताएंगे कि बॉन्ड कितना स्टेबल है। मिसाल के तौर पर हम क्या बोले, बॉन्डिंग किसकी वजह से है? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वजह से, यानी कि इनके दरमियान इंटरेक्शन की वजह से। भाई ये भी इंटरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद के ऊपर, है क्या नहीं? भाई बराबर जोड़ी को जोड़ी, इधर एक प्रोटॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक प्रोटॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन रहा तो जोड़ी बनी रहेंगी बराबर, जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन रहेंगे सहेगा, स्टेबल रहेगा मामला, है क्या नहीं? लेकिन एक आधा इलेक्ट्रॉन ऐसा है उसकी जोड़ी नहीं है तो वो क्या करेगा? जल्दी फूटेगा। समझ में आ रही क्या बात? Yes, sir. जल्दी से बाहर निकल जाएगा। Yes, sir. जो आदमी घर के अंदर मजबूत रहता, किसी के साथ उसका अटैचमेंट रहा तो बाहर वाले ने बहकाया तो फूटता नहीं जल्दी, है करेक्ट? वैसे इलेक्ट्रॉन का मामला है, उसको अगर जोड़ी नहीं रही तो उन्हें फौरी तौर पर किसी रिएक्शन के साथ या बगैर रिएक्शन के भी बाहर निकल जाता। अगर वो बाहर निकल गया तो फिर बॉन्ड स्टेबल हुआ क्या? No. तो यहाँ No, ये sir. यही बता रही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेबल बॉन्डिंग अरेंजमेंट employs the special configuration of positive ion core यानी कि पॉजिटिव आयन एंड बाहर कौन है? न्यूक्लियस के बाहर Negative ion. नेगेटिव आयन्स, ठीक है? The energy deficiencies of the configuration compared with the isolated atom is known as cohesive energy. इसको बोलेंगे cohesive energy. The energy deficiency configuration compared with isolated atom is known as cohesive energy. और भी देखेंगे हम cohesive energy का, and it ranges in the value from 0.1 electron volt per atom for solid which can muster only the weak van der Waals to 7 electron volts per atom or more in some covalent and ionic compound and some metal. अभी यहाँ पे आपको कोवैलेंट आयनिक नहीं समझ में आ रहा होगा या केमिस्ट्री में हुआ भी होगा तो यहाँ उतना जहन में नहीं आ रहा होगा, घबराइए मत। फिलहाल खाली इतना समझ जाइए कि कितने के इलेक्ट्रॉन के साथ कौन से एटम के साथ कितनी कोहेसिव एनर्जी लगी रहेंगी, इसका इन्हिसार है कि बॉन्ड कितना वीक और कितना Strong है। इतना समझ जाइए। इतना जो मैंने इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग के बारे में बोला समझ में आया कि इतना इंट्रोडक्शन आप समझ सके क्या? बोलिए मुझे तीनों भी एक एक करके बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. Energies of interactions between atoms. The energy of the crystal is lower than the energy of free atoms by an amount equal to the energy required. मैं मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड किसका मिलके बनता? एक सोडियम और एक, मिसाल के तौर पर एक सोडियम और एक Chlorine. क्लोरीन। क्लोरीन के साथ कुछ तो भी एनर्जी है, मिसाल के तौर पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है। क्लोरीन के साथ सोडियम के साथ, क्लोरीन के साथ समझो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम के साथ समझो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों मिले तो दोनों मिलके काय को जन्म दिए? सोडियम क्लोराइड कौन सा स्ट्रक्चर है? बेरियम तनाजा पढ़ेगी आपने, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हुआ क्या? क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना।
सर वो भी नहीं समझ रहा, छोड़ दो। सोडियम और क्लोराइड मिलके कंपाउंड बनाते क्या, सोडियम क्लोराइड? ऑल ऑफ यू आर देयर और नॉट? तहरीम सर आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही। आप आ रही है? यस सर। Yes, sir. मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिलके काय को जन्म देते? काय के कौन से क्रिस्टल को? NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनता। सोडियम अब मैं Yes, आपको sir. बोल रहा हूँ कि मिलने से पहले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। फर्ज कीजिए द एनर्जी ऑफ द क्लोरीन सपोज इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ द सोडियम बिफोर द इंटरेक्शन या बिफोर कंबाइनिंग इज सपोज द 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम आई करेक्ट? तो जब ये दोनों Yes, sir. जब ये दोनों मिले क्या बना इन्होंने? सोडियम क्लोराइड NaCl. बनाए। देखिए मिले, Yes. सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनाए। तो आप क्या बोलेंगे कि इसकी एनर्जी मिलके ये दोनों की कंबाइन एनर्जी इसके अंदर आना कि नहीं? इसकी दो Yes, sir. इसकी एनर्जी कितनी होना था तुम्हारे हमारे हिसाब से? 7. 7। लेकिन प्रैक्टिकली पता था कि द एनर्जी ऑफ द कंबाइंड क्रिस्टल ऑफ सोडियम, यहाँ तो मैं जनरल बात करें लेकिन यहाँ के अंदर हम बताएं तो उसकी एनर्जी दोनों की इंडिविजुअल की एनर्जी से कम है। मतलब 5 + 2 7 नहीं है इसकी, बल्कि इसकी एनर्जी कितनी है? 6 या 6.5 है। मतलब क्या हो गया? आधी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहाँ चले गई? This energy is lost to pull the crystal apart into the set of free atoms. So the energy of the crystal is lower than that of the free atoms by an amount equal to energy required to pull the, यानी कि ये 2 और ये 7 में की थोड़ी थोड़ी, इन्हें अपनी थोड़ी एनर्जी लॉस करा, इन्हें थोड़ी अपनी एनर्जी लॉस करा। काय के वास्ते? कौन सी प्रोसेस करने में? बॉन्ड करने की, बॉन्डिंग करने में, पुल करने में, क्रिस्टल बनाने में, बॉडी बनाने में इन्होंने अपनी थोड़ी सी एनर्जी लॉस कर दी। तो याद रखिएगा, 2 एटम्स को मिलकर जो क्रिस्टल बनेगा या जो सॉलिड एटम बनेगा उसकी एनर्जी दोनों के इंडिविजुअल एनर्जी के सम से थोड़ी कैसी रहेगी? लोअर होंगी, लेस होंगी। यस, दिस इज कॉल्ड एज द बॉन्डिंग एनर्जी या दिस इज कॉल्ड एज द कोहेसिव एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल। कैसे डिफाइन करेंगे कोहेसिव एनर्जी? The amount of energy of the atom which is pulled, which is lost in pulling the 2 atoms together to form a crystal is called as कोहेसिव एनर्जी। समझ में आ रही क्या बात? यस सर। The NaCl is more stable than the collection of free. अकेला क्लोरीन अकेला सोडियम स्टेबल है क्या? कब तक भी नहीं रहेगा, लेकिन जब मिल जाएगा जब स्टेबल है। यस सर। दोनों को थोड़ी देर के लिए अगर दूर दूर रखे तो दोनों उतने स्टेबल नहीं है, लेकिन NaCl is more stable than the collection of free sodium and free chlorine. उसी तरह जर्मेनियम क्रिस्टल इज मोर स्टेबल देन द कलेक्शन ऑफ फ्री जर्मेनियम। समझ में आ रही बात? दैट इट इज द एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू सॉलिड टू सेपरेट इट्स कंस्टिट्यूएंट। इसके या कोई सी एनर्जी की अल्टरनेट डेफिनेशन अगर मैं बोलूं आपको, अब मेरे को ये सोडियम क्लोराइड को अलग अलग करने का क्या करूं? एनर्जी लगाऊं। एनर्जी लगाएंगे। एनर्जी तो कितनी एनर्जी इसको लगेगी? उतनी ही एनर्जी इसको लगेगी जितनी ये दोनों को मिलने में लगी थी। आपने फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ के आए ना जी न्यूक्लियर फिजिक्स में? यस सर। समझ में आया क्या कि ये NaCl को तोड़ के अगर अलग अलग सोडियम और अलग अलग क्लोरीन बनाने का है तो इसको उतनी एनर्जी लगेगी जितनी यहाँ पे लॉस हुई थी, और यही एनर्जी क्या नाम से पुकारी जाएगी? कोहेसिव एनर्जी। तो फिर इसकी डेफिनेशन बोलूं क्या? यहाँ जो एनर्जी तुमने कोहेसिव एनर्जी की यहाँ डेफिनेशन क्या बोले? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द क्रिस्टल अपार्ट इनटू द सेट ऑफ फ्री एटम्स। इसको ऐसा बोलूं क्या? इट इज द एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द सॉलिड टू सेपरेट इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इनटू न्यूट्रल फ्री एटम्स। यानी कि सोडियम क्लोराइड को लगने वाली वो एनर्जी जो क्या करेंगी? सोडियम अलग और क्लोरीन अलग अलग। तो इनको अलग करने के वास्ते लगने वाली एनर्जी मसावी है कोहेसिव एनर्जी। समझ में आ रही बात? यस सर। और एक टर्म देख लीजिए,
लेटाइस एनर्जी ऑफ द सॉलिड, लेटाइस किसको बोलते पढ़े अपने पिछले चैप्टर में, क्रिस्टल का जो यूनिट सेल को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लेटाइस, क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं, जो यूनिट सेल का Yes, रहता है, यूनिट सेल और बेसिस का मिलके बनता। तो लेटाइस ऑफ द सॉलिड इट इज द एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू एन आयोनिक क्रिस्टल टू सेपरेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू फ्री आयंस, यानी कि वो क्रिस्टल जो अलग अलग आयंस का मिलकर बना है, अगर आपको क्रिस्टल को तोड़ने का और आयंस अलग अलग निकालने के तो लगने वाली एनर्जी क्या, कौन सी एनर्जी कहलाएगी, बोलिए, Static energy. लेटाइस एनर्जी, amount of energy required to, yeah, amount of energy that must be supplied to an ionic crystal to separate the ions from the crystal. सोडियम आयन अलग निकालो, क्लोरीन आयन अलग निकालो, अलग अलग आयंस को करने के वास्ते जो एनर्जी लगेगी, जो ताकत लगेगी, जो फोर्स आप देंगे, वो फोर्स क्या कहलाएगा, उस लेटाइस को तोड़ने वाली एनर्जी, मतलब लेटाइस एनर्जी ऑफ द सॉलिड। समझ में आ गई बात आपके? Yes, sir. Forces responsible for the cohesion of the solid. कोहिजन के वास्ते तीन कुव्वत रहती, कूलम फोर्स, सुनेंगे नाम कभी, कूलम फोर्स, Yes, sir. कूलम फोर्स which is a major contribution to the cohesion of solid, magnetic force this is has a weak contribution to the cohesion, और तीसरा है gravitational force। ये तीन किस्म के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है जो किसको असरअंदाज करेंगे, कोहिजन, कोहिजन बोले तो उसको तोड़ने के वास्ते लगने वाली एनर्जी में कौन कौन से एनर्जीज का हिस्सा है, कौन, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स में कौन कौन जिम्मेदार है, कूलम फोर्स, Magnetic force, gravitational and force. gravitational force. This is about the band theory, some introduction and basic things. So this chapter introduction and first article we have taken here. If you are having any question, please ask me. है क्या आपके पास कोई question? Now the No, sir. remaining article of this one we will see in the next period. If tomorrow time permits, I will take the period. Otherwise, we will take the period on next Thursday now. ठीक है? Okay, sir. ये टाइम ठीक है? सुबह का और कोई मुनासिब टाइम है आपके पास? सर 9:30 बजे सुबह। 9:30 बजे से तो वो एक हमारा रेगुलर पीरियड है, अभी तो नहीं लेते 9:30 बजे, क्योंकि मेरे सर के लिए इसलिए आसानी होती 9:30 को लेना कि जी